Hello everyone, my name is Yashwardhan Sharma and today we're going to discuss about AutoCAD. Before starting our presentation, I would like to tell you about myself that I have completed my graduation from mechanical stream and after that I just start working and I have completed around 6 years of experience in that particular domain. And if you talk about the softwares I know about AutoCAD, CATIA, SolidWorks, VNX, ANSYS and we're going to discuss about AutoCAD in this lab. So let's start with that. In this video, we're going to discuss about some topics which are listed over there. These are outlines of these topics. Like we're going to start with introduction, then talk about some latest version of AutoCAD. Then we'll go further with AutoCAD screening, like how its screen works and what are the sections which provides there in the screen. Then after that, we're going to discuss about where to provide commands, how we're going to deal with the commands in AutoCAD. Then how that command will work, then after coordinate system, toolbars and some 2D commands. Then after completing 2D sections, we're going to move to the 3D sections and some of the topics of the 3D. And after that, we're going to cover about isometric views as well. Then I'm going to tell you about some projects which I have completed and then provide you some benefits of AutoCAD as well. So let's start with the introduction. In introduction, let's start with the first thing that the word AutoCAD is made up of two words, auto and CAD. So what does auto and CAD means? Here auto means logo of the company and the CAD means computer aided design. So AutoCAD is a 2D and a 3D software. So that means कि हम AutoCAD के अंदर 2D designs that means two dimensional drawing जिसमें हम आप x, y और z एक्सिस यूज कर सकते हैं जिसमें आप 2D के अंदर सिर्फ दो ही एक्सिस को यूज कर सकते हो लाइक x and y. सिमिलरली इफ यू टॉक अबाउट 3D मॉडलिंग तो हम 3D मॉडलिंग के अंदर x, y और z तीनों एक्सिस का यूज कर सकते हैं. AutoCAD को डेवलप करने वाली कंपनी का नाम था Autodesk and Autodesk is a US based company. It is widely used in industry for 2D drawing and 3D modeling. जैसा कि आपको पता चल ही गया होगा अभी तक कि AutoCAD 2D और 3D में यूज करा जाता है तो ऑब्वियस सी बात है कि जहाँ जिस कंपनी में 2D और 3D की रिक्वायरमेंट्स होती है वहाँ पर आप AutoCAD का यूज भी कर सकते हैं. In other ways, we can say that AutoCAD is a designing course which performed by the help of computer. As we have discussed that AutoCAD is a CAD software, right? तो CAD software है तो हम इसे सिस्टम की मदद से यूज करते हैं and that's what it said performed by the help of computer. Let's move to the next slide. Here we're going to talk about the versions of AutoCAD. What does versions mean? So we'll start with the first section, that is AutoCAD software was firstly launched by Autodesk company in December 1982. Like आपको समझ में आ ही गया होगा कि 1982 में फर्स्ट सॉफ्टवेयर है जो ऑटोडेस्क ने लॉन्च किया था AutoCAD का एंड देन इंडिया के अंदर ये 1988 में आया. द फर्स्ट वर्जन ऑफ AutoCAD वाज R1. जो फर्स्ट वर्जन था AutoCAD का वो R1 के नाम से था. उसके बाद में R2, R3, R4 एंड सो ऑन उसके बाद में कंपनी ने लॉन्च कर दिया. In 2000, Autodesk launched a version of AutoCAD 2000. After that, 2001, 2002. जैसा कि अभी आपको क्लियर हो चुका होगा कि 1988 में जब सॉफ्टवेयर इंडिया में लॉन्च हुआ था उसके बाद में R1 R2 के नाम से लॉन्च किया जाता था उसके बाद में. बट आफ्टर 2000 सॉफ्टवेयर को लॉन्च करने का तरीका चेंज कर दिया गया. जैसे पहले R1 R2 के नाम से लॉन्च होता था देन उसके बाद में ईयर वाइज लॉन्च होता था. This time we have the latest version of AutoCAD 2014. But as we all know that here we are on 2022. तो अभी आपके पास में एक साल आगे का वर्जन आता है. लाइक अगर आप सर्च करेंगे तो अभी AutoCAD ने 2023 लॉन्च कर चुका है. राइट, लेट्स मूव फर्दर. हियर वी गोना टॉक अबाउट द बेनिफिट्स ऑफ AutoCAD. बेनिफिट्स मतलब AutoCAD के फायदे क्या क्या है. तो सबसे पहला फायदा जो आपको यहाँ पर दिख रहा है वो है क्विकली क्रिएटेड डिजाइन्स. हम AutoCAD के अंदर कमांड्स के थ्रू जल्दी से जल्दी डिजाइन बना सकते हैं. इम्प्रूव क्वालिटी ओवर हैंड ड्राफ्टिंग. लाइक अगर आप हाथ से कोई भी डिजाइन बनाते हैं तो ऑब्वियसली बात है कभी लाइन स्ट्रेट नहीं होती है या फिर कोई भी डिजाइन से वो एक्यूरेसी नहीं आती है. बट हियर वी आर यूजिंग सॉफ्टवेयर तो सॉफ्टवेयर के अंदर जो भी कमांड्स आप यूज कर रहे हैं वो एक्यूरेटली वर्क करती है और यही सॉफ्टवेयर का काम भी होता है. देन यहाँ पर हम इजीली मॉडिफाई कर सकते हैं चीज़ों को. जैसे कि अगर आपने कोई डिज़ाइन बनाई है तो उसको वापस से डिज़ाइन करना या फिर उसमें कुछ चेंजेस करने हैं तो उसमें थोड़ा टाइम लग जाता है. हो सकता है चीज़ें रॉ मटेरियल जो भी आपके पास में यूज़ कर रहे हैं उसमें भी कुछ डिफिकल्टीज आ सकती है. देन इफ यू टॉक अबाउट एक्यूरेसी, जैसा said कि एक्यूरेसी मतलब आप कितने एक्यूरेटली काम कर रहे हैं. लाइक अगर आपको 10 सेंटीमीटर की लाइन खींचनी है तो अगर आप हाथ से उसको ड्रॉ करते हैं तो ऑब्वियसली बात है कि हर बार एक्यूरेट 10 mm या 10 यूनिट का जो लाइन है वो नहीं बन पाती है, या तो मोर देन दैट या फिर लेस देन दैट. बट इफ यू आर यूजिंग सॉफ्टवेयर तो वहाँ पर एक्यूरेसी का मेजरमेंट ज़्यादा होता है. देन सॉफ्टवेयर है तो उसकी एक फाइल होती है और फाइल को इजीली ट्रांसफर किया जा सकता है.
देन अगर आप सॉफ्टवेयर की फाइल सेव कर रहे हैं तो आप उसको अपने पास में बहुत ही लंबे टाइम तक सेव करके भी रख सकते हैं। एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, अगर हम कंपनीज की बात करें तो ऑटोकैड कहाँ कहाँ पर काम आता है, तो यहाँ पर कुछ कंपनीज का मैंने ऑलरेडी लिस्टेड करा हुआ है। तो जैसे कि आप इन कंपनीज को देख सकते हैं, डेली मोशन, द नॉर्थ फेस, एंड आपके नॉन फेस जैसे HCL, फोर्ड मोटर कंपनीज, जॉनसन, ऐसी बहुत सारी कंपनीज है जो ऑटोकैड को यूज कर रही है, जहाँ पर डिजाइनिंग के लिए ऑटोकैड सॉफ्टवेयर को यूज किया जाता है। अब बात करते हैं सैलरी पैकेजेस की। तो सैलरी यहाँ पर ऑलरेडी मैंने लिस्ट करी हुई है। अगर आप ऑटोकैड को जानते हैं तो ऑटोकैड के दम पे आप ड्राफ्टर, डिजाइनर, एक प्रोफेशनल मैकेनिकल डिजाइनर, स्ट्रक्चरल डिजाइनर, इवन इलेक्ट्रिकल डिजाइनर, इंस्ट्रक्टर, प्रोडक्ट इंजीनियर या फिर प्रोडक्ट मैनेजर के पोस्ट पे भी जा सकते हैं। जैसा आपका एक्सपीरियंस होगा, जैसा आपका नॉलेज होगा, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर आपकी ऑलरेडी सैलरी लिस्टेड है। इट्स जस्ट एन एग्जाम्पल। आप हो सकता है कि किसी ड्राफ्टिंग की पोजीशन पर भी ज्यादा सैलरी पैकेज में जा सकते हैं। तो इट्स कम्प्लीटली डिपेंड ऑन यू कि आपको वो स्किल्स कितने अच्छे से आती है। राइट, विल मूव फर्दर। अगर मैं बात करूँ ऑटोकैड की, तो यहाँ पर हमारे पास में एक इमेज फॉर्मेट है जो शो करता है कि अगर आप ऑटोकैड यूज कर रहे हैं तो ऑटोकैड आपको किस अकॉर्डिंग दिखता है। दैट्स द स्क्रीन वेयर वी वर्क। राइट, तो यहाँ पर सभी जो डायग्राम्स है उसके अकॉर्डिंग हमने यहाँ पर उसको नेमिंग करी हुई है कि कहाँ पर क्या चीज प्लेस होती है। जैसे ऑरिजिन इन द लेफ्ट साइड कॉर्नर, कमांड पैलेट, स्टेटस बार, पैनल, रिबन, इवन मेन ब्राउजर, टैब्स एंड इंफॉर्मेशन सेंटर। तो ये सब चीजें यहाँ पर आपको स्क्रीन में दिखेगी जहाँ पर आप काम करेंगे। एंड अगर हम बात करें कमांड्स की, क्योंकि जो भी हम सॉफ्टवेयर में काम करने वाले हैं वो कमांड्स के थ्रू करने वाले हैं, तो यहाँ पर कमांड्स देने के यहाँ पर हमारे पास में 3 तरीके हैं। यू कैन टाइप शॉर्टकट्स डायरेक्टली, आप ऊपर से किसी भी आइकन पे क्लिक कर सकते हैं, या फिर आप स्पेसिफिकली कॉल कर सकते हैं कमांड। हाउ ऑटोकैड वर्क्स, तो अब सबसे पहले बात करना चालू करते हैं कि अगर हम ऑटोकैड में काम करना चाहते हैं तो ऑटोकैड में काम करने के लिए हमें कैसे यूज करना चाहिए, किन कमांड्स का यूज करना चाहिए, या फिर हम कैसे स्टार्ट कर सकते हैं। इफ देयर इज अ कोऑर्डिनेट सिस्टम यूज्ड ऑटोकैड, तो ऑटोकैड क्या होता है? ऑटोकैड एक कोऑर्डिनेट बेस्ड सिस्टम होता है। द फर्स्ट डेफिनेशन कम्स इन माय माइंड इफ यू टॉक अबाउट ऑटोकैड, दैट इज ऑटोकैड इज अ कोऑर्डिनेट बेस्ड सिस्टम। इवन ड्राइंग शोज इट्स कोऑर्डिनेट। तो आपकी जो ड्राइंग होती है उसके भी एक पर्टिकुलर कोऑर्डिनेट्स होते हैं। लाइक हियर वी हैव अ ओरिजिन इन द लेफ्ट साइड कॉर्नर। ओरिजिन का मतलब होता है द पॉइंट वेयर वी स्टार्ट डिजाइनिंग, दैट इज 0 0। तो जिस भी साइड में हम मूव करेंगे उस साइड से हमारे उसकी काउंटिंग स्टार्ट हो जाती है और पर्टिकुलर पोजीशन पे अलग अलग वैल्यूज होती है, उसे हम कोऑर्डिनेट्स बोलते हैं। Now, in the above next slide, the line shows its coordinate, that is 9, 6 and -10 and -4। अगर हम बात करें यहाँ पर हमारे पास में जो डायग्राम्स यहाँ पर बने हुए हैं, इन साइड्स के अंदर हमारे पास में डायग्राम्स बना हुआ है, उस डायग्राम के कोऑर्डिनेट्स हमारे पास में यहाँ पर दे रखे हैं। राइट, तो भी हम उसकी बात भी करेंगे। देयर इज सो मेनी कमांड्स लाइक कॉपी, मूव, रोटेट, मिरर एंड 2D पाथ एरे, रेक्टेंगुलर पाथ एरे, पोलर पाथ एरे। तो ये सब नाम्स है उन कमांड्स के जो हम ऑटोकैड में यूज करते हैं हमारे डिजाइन को बनाने के लिए। Different type of drawing can be made in the same time by using a command that is layer। तो हम एक ही कमांड, जैसे लेयर है हमारे पास में, उस लेयर कमांड से हम मल्टीपल डिजाइन बना सकते हैं एक ही टाइम पर। तो वो कैसे काम आती है, क्या काम आती है, वी गोना डिस्कस इन दिस प्रेजेंटेशन। Using line, arc, circle, rectangle, ellipse and polygon, so many drawings of different type can be made। मतलब अलग अलग कमांड से अलग अलग डिजाइन बनाने का यूज कर सकते हैं। कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या होता है? लेट वी हैव डिस्कस्ड अबाउट देयर इज अ कोऑर्डिनेट सिस्टम इन यूज्ड इन ऑटोकैड। व्हाट इज कोऑर्डिनेट सिस्टम? एवरीथिंग दैट वी कैन ड्रॉ इन ऑटोकैड इज एग्जैक्ट। तो जो भी हम चीज बना रहे हैं ऑटोकैड में वो एग्जैक्ट है। कैसे एग्जैक्ट है? क्योंकि उस पर्टिकुलर पॉइंट पे उसका कोऑर्डिनेट होता है, एक लोकेशन होती है, तो हम उस पॉइंट को लोकेट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ कोऑर्डिनेट्स। ऑल ऑब्जेक्ट ड्रॉन ऑन स्क्रीन इज बेस्ड ऑन सिंपल एक्स एंड वाई कोऑर्डिनेट सिस्टम। अगर हम 2D डिजाइन कर रहे हैं, if AutoCAD is known as world coordinate system, we are drawing a line, so we have 2 points, right? If we talk about a line here in this particular diagram, we have line like starts from here and end at here. So the A point represents -10 and -4, that are the coordinate for the starting point, and B point 9 and 6 as shown in figure. So that is first quadrant where X and Y both are in positive value. If we talk about that side, that is second quadrant where X value is negative and Y is positive. Similarly, here we have the third quadrant and the fourth quadrant, and so on their values are. Let's talk about some UCS and WCS. The AutoCAD world is three-dimensional. However, if we want to draw 2D objects such as
a plan or a section, we will use only two dimension x and y. Like अगर हम इस लाइन की बात करें तो हमारे ये जो लाइन है ये एक 2D डायग्राम है, राइट. WCS, World Coordinate System, is the imaginary plane that is parallel to the ground. It is the difficult coordinate system. अब WCS हमारे पास में वर्ल्ड कोऑर्डिनेट सिस्टम होता है जो कि एक इमेजिनरी प्लेन की तरह काम करता है जो ग्राउंड से पैरेलल होता है. मतलब वो उसको कभी इंटरसेक्ट नहीं करेगा बट एक सेम डिस्टेंस मेंटेन करके रखेगा. मॉडिफिकेशन मेड टू द वर्ल्ड कोऑर्डिनेट सिस्टम रिजल्ट इन अ यूजर कोऑर्डिनेट सिस्टम. अब ये जो कोऑर्डिनेट सिस्टम था WCS वो थोड़ा डिफिकल्ट था, इसलिए उसमें सब मॉडिफिकेशंस किए गए ताकि वो थोड़ा सा इजी हो जाए और उसे हम बोलते हैं UCS, यूजर कोऑर्डिनेट सिस्टम. इट इज द प्लेन दैट यू वर्क ऑन इफ इनेबल्स द यूजर ड्रॉन थ्री डायमेंशनल ऑब्जेक्ट. तो इसकी हेल्प से हम थ्री डायमेंशनल ऑब्जेक्ट भी बना सकते हैं. टू क्रिएट अ न्यू UCS, टाइप UCS ऑन द कमांड विंडो. दे से न्यू एंड स्पेसिफाई 3 पॉइंट ऑन योर न्यू UCS प्लेन. तो न्यू UCS बनाने का तरीका आपके सामने यहाँ पर रिप्रेजेंट करा गया है. आपको कमांड लाइन के अंदर सिर्फ न्यू UCS लिखना है, देन उसके बाद में स्पेसिफाई करने हैं 3 पॉइंट्स एंड योर प्लेन विल बी क्रिएटेड. नाउ इफ यू टॉक अबाउट द ड्रॉ टूलबार एंड द मॉडिफाई टूलबार, व्हाट आर दे? तो ड्रॉ टूलबार वो टूलबार है जहां पर आप जो डिजाइन करना चाहते हैं उससे रिलेटेड टूल्स आपको मिलेंगे. एंड इफ यू टॉक अबाउट द मॉडिफाई टूलबार, तो मॉडिफिकेशन के रिगार्डिंग जो भी टूल्स होते हैं वो वहां पर मिलते हैं. लेट्स सी इफ यू टॉक अबाउट सर्कल, रेक्टेंगल, लाइन, आर्क, तो ये जो ऑप्शंस होते हैं ये आपके ड्रॉ के हैं. बट सिमिलरली अगर हम मूव, कॉपी, इरेज, ट्रिम की बात करें तो ये हमारे मॉडिफाइंग टूल्स हैं. लेट्स स्टार्ट विद द थिंग्स. Following image shown two very basic toolbars. These are heavily used as a progress towards the end of the drawing. You can access these toolbars under the home tab. That are the image which was used in 2014 software, but if you talk about the 2013 version, the toolbar will be different. So जैसे जैसे वर्जन चेंज होते जाएंगे वैसे वैसे आपका जो इंटरफेस होता है उसकी विजुअलिटी होती है वो चेंज होती जाती है. As we move cursor over any tool in the toolbar, a tip of the mouse will represent its name, right? एंड जब भी हम उस पर क्लिक करेंगे तो कमांड लाइन पर उसका नाम शो हो जाएगा एंड रिलेटेड हिंट्स भी शो हो जाएंगे. डायमेंशन टूलबार. अब डायमेंशन टूलबार के बारे में बात करते हैं. सबसे पहले हमने डिजाइन बनाई, डिजाइन के अंदर कुछ मॉडिफाई करें एंड जब हमें उसको रिप्रेजेंट करना होता है तो हमें ये चीज सामने वाले को भी ये शो करनी पड़ती है कि व्हाट आर द मेजरमेंट्स, राइट. तो मेजरमेंट शो करने के लिए हम डायमेंशनल टूलबार का यूज करेंगे. AutoCAD provides lots of control over the way dimension look using a system similar to textile. Dimension style allows you to design dimension so that they look just the way you want, right? क्योंकि डायमेंशंस इसीलिए यूज की जाती है कि जहाँ पे आपने जो वैल्यूज दे रखी है, जो फिर क्राइटेरिया आप यूज करो डिजाइन करने के लिए, वही सेम रिपीट हुआ है नहीं, राइट. लेट्स मूव फर्दर. ड्राइंग डिपेंडिंग यूज द डायमेंशन. सो जहाँ पर एक एग्जांपल आपके सामने है जिसमें हमने एक ड्राइंग बनाई है और उस ड्राइंग के अंदर सेवरल डायमेंशन यूज करें. तो जैसा कि आपको यहाँ पर दिख रहा है, ये जो यहाँ पर टूल बार दिख रही है या इसको हम बोलते हैं पैलेट, और यहाँ पर जो ये पैलेट है ये है ड्रॉ पैलेट. सिमिलरली दैट पैलेट इज कॉल्ड मॉडिफाई पैलेट. एंड यहाँ पर हमारे पास मैनोटेशन आ रहा है जहाँ पर यहाँ पर डायमेंशन स्टाइल्स. लेट्स मूव बैक. ये जो टूल्स आपको यहाँ पर दिख रहे थे ये एक वर्जन का टूल बार का एग्जाम्पल था. सिमिलरली यहाँ पर जो आपको टूल्स दिख रहे हैं ये मॉडिफाइड टूल्स का एग्जांपल था बट अ डिफरेंट वर्जन. सिमिलरली यहाँ पर जो आपको टूल्स दिख रहे हैं ये डिफरेंट वर्जन का एग्जांपल. एंड इफ यू लुक क्लोजली दैट इज 2012 वर्जन. तो यहाँ पर जो डिजाइन हमने बनाई है वो बनाई है ड्रॉ टूल बार से. एंड इसमें जो भी चेंजेस करें लाइक रिमूविंग एक्स्ट्रा पार्ट्स, क्रिएटिंग डॉटेड लाइंस एंड जो भी चेंजेस आपने यहाँ पर करें विद द हेल्प ऑफ मॉडिफाइड टूल्स. एंड फाइनली हमने जो डायमेंशंस दी है विद द हेल्प ऑफ एनोटेशन टूल बार. हाउ टू साइन ड्राइंग यूनिट्स. लाइक अगर आपने यहाँ पर कोई भी ड्राइंग बनाई है तो एक पर्टिकुलर क्राइटेरिया फॉलो कर रहा है या फिर बोल सकते हैं कि आपने पर्टिकुलर मेजरमेंट्स फॉलो करी है. तो यहाँ पर मेजरमेंट्स क्या क्या हो सकती है. लाइक इफ यू टॉक अबाउट द मैकेनिकल सेक्शन, मैकेनिकल वाले या फिर सेंटीमीटर में यूज करते हैं, मिलीमीटर या सेंटीमीटर यूज करते हैं. सिमिलरली अगर सिविल की बात करें तो वो इंच और फीट में काम करते हैं. वैसे ही इलेक्ट्रिकल है, इलेक्ट्रिकल इवन मीटर्स में भी काम करते हैं. तो यहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट सेक्शंस के लिए डिफरेंट डिफरेंट मेजरमेंट्स होते हैं. तो वो कैसे यूज करते हैं. To set the drawing units, go to the drop down window at the top left side of AutoCAD, right? And वहां पर जाकर आपको क्या करना है, Alt+O आप यूज कर सकते हैं या फिर आप वहां पर लिखे हुए फॉर्मेट वाले सेक्शन पे क्लिक कर सकते हैं. And from this menu select units. A pop-up window will appear that will set
a drawing unit as shown below. तो ये एक एग्जांपल है जहां पर हम आपको शो कर रहे हैं कि अगर आपको ड्राइंग यूनिट्स को चेंज करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा। एंड इफ यू टॉक अबाउट मोर सिंपल यूनिट्स तो आपको सिर्फ कमांड लाइन के अंदर यू एन लिख के एंटर प्रेस करना है एंड आपके सामने ये विंडो आ जाएगी। यहाँ पर आपको क्या करना है, जस्ट क्लिक ऑन द टाइप्स इन द लेंथ सेक्शन और यहाँ पर आपको सेवरल टाइप्स मिल जाएंगे जिससे आप यूनिट्स यूज कर सकते हैं। वहीं पर आपको यहाँ पर सैंपल्स दिख जाएंगे कि वो यूनिट आपको कैसे दिखने वाली है। लेट्स मूव फॉर द टेक्स्ट कमांड इन ऑटोकैड। तो अब हमने बात कर ली है डिजाइनिंग की, लाइक हमने कोई डिजाइन क्रिएट कर ली है, उसको मॉडिफाई कर लिया है, डायमेंशंस भी दे दिए। एंड इफ वी रिक्वायर टू टाइप एनी टेक्स्ट, हाउ वी कैन टाइप टेक्स्ट। तो हियर इज एन एग्जांपल कि अगर आप एनोटेशन में है तो वहां पर आप डायमेंशन के साथ साथ टेक्स्ट भी लिख सकते हैं। सिमिलरली जब भी आप टेक्स्ट लिखेंगे तो आपके पास में एक टेक्स्ट एडिटर विंडो खुलेगी जहां पर आप रिलेटेड फॉन्ट, कलर, साइज, इवन सिंबल्स भी यूज कर सकते हैं अपने टेक्स्ट को रिप्रेजेंट करने के लिए। देन उसके बाद में हम बात करते हैं हैचिंग। सो यू कैन सी इन दिस एग्जांपल हमारे पास में एक रेक्टेंगल है या फिर एक रैंडम डायग्राम है। उस डायग्राम के अंदर हमने कुछ एक पैटर्न क्रिएट करा है, तो इस पैटर्न को रिप्रेजेंट करते हैं हम हैच वर्ड से। तो हैचिंग इज यूज्ड टू ऐड शेडेड पैटर्न्स टू ऑब्जेक्ट एंड शेप्स विद इन एन ऑटोकैड ड्राइंग। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, हैच किस लिए यूज करते हैं, ऑटोकैड की ड्राइंग के अंदर कुछ डिजाइन या पैटर्न बनाने के लिए उसको यूज करते हैं। हैच पैटर्न कैन बी यूज्ड इन इंडिकेटिंग अ मटेरियल टू बी यूज्ड सच एज कंक्रीट हैच। तो जैसे यहाँ पर एग्जांपल दे रखा है कि आप जो भी डिजाइन बना रखी है, अगर वहां पे आपने कंक्रीट यूज कर रखा है मटेरियल एज अ मटेरियल, तो कंक्रीट से रिगार्डिंग एक कंक्रीट टाइप हैच होती है। तो यहाँ पर हमारे पास में क्या क्या ऑप्शन होता है, यू विल पिक पैटर्न, स्केल, एंगल एंड पॉइंट्स। तो यहाँ पर आपके पास में ये ऑप्शन है जिसके थ्रू आप हैच कर सकते हैं। एंड इफ यू टॉक मोर अबाउट द हैच तो हमारे पास में अराउंड 4 टाइप्स ऑफ हैच हमारे पास में होते हैं। यू कैन सी हियर इट शोज पैटर्न, राइट। सो पैटर्न इज अ टाइप, बट पैटर्न के अलावा हम सॉलिड यूज कर सकते हैं, ग्रेडियंट यूज कर सकते हैं, इवन सुपर हैच भी यूज कर सकते हैं, और वी कैन कॉल इट यूजर हैच। लेट्स टॉक अबाउट सम ब्लॉक मेकिंग सेक्शन। सो सेटिंग अप अ ब्लॉक लुक लाइक दिस। ये आपके पास में यहाँ पर एग्जांपल आपको दिख रहा है, एक ब्लॉक बनाना कुछ ऐसा दिखता है, और ब्लॉक बनाने के लिए आपको कुछ ऐसी विंडो को सेटअप करना पड़ता है जिसके थ्रू आप ऐसा ब्लॉक क्रिएट कर सकते हैं। अब ब्लॉक क्रिएट करने का पूरा यहाँ पर तरीका यहाँ पर दे रखा है, मैं आपको सिंपल तरीके से बताता हूँ। ब्लॉक क्रिएट करने के लिए अगर आपने यहाँ पर विंडो को देखा हुआ है तो यहाँ पर आपको ब्लॉक का सेक्शन दिखेगा। हियर यू कैन सी द ब्लॉक सेक्शन। तो ब्लॉक का मतलब क्या होता है, जैसे यहाँ पर आपके पास में एक डिजाइन है, इस डिजाइन को एज इट इज आपको कहीं और पर रखना है क्योंकि ये कुछ अलग अलग सेक्शन से मिलकर बना हुआ है। अभी सेपरेट सेपरेट है, बट हमें इसको यूनिट एक बना के इसको कहीं पर प्लेस करना है। दैट्स हाउ वी कैन यूज ब्लॉक। तो यहाँ पर हमारे पास में एक विंडो ओपन हो रखी है। इस विंडो के अंदर हम नेम डिफाइन करेंगे कि आप अपने ब्लॉक को क्या नाम देना चाहते हैं। देन उसके बाद में ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करेंगे कि आप कितने ऑब्जेक्ट्स को एक ब्लॉक में रखना चाहते हैं या फिर एक यूनिट में रखना चाहते हैं। देन उसके बाद में आप स्पेसिफाई करेंगे बेस पॉइंट, एक इंडिकेशन पॉइंट जिसके थ्रू आप उस ब्लॉक को इंडिकेट कर सकते हैं। तो दैट्स हाउ वी कैन क्रिएट अ ब्लॉक। एंड सिमिलरली हमारे पास में एक और इफेक्टिव कमांड होती है कॉल्ड ग्रुप। तो ये दो कमांड होती है जिसके थ्रू हम मल्टीपल ऑब्जेक्ट को एक यूनिट की तरह यूज कर सकते हैं। नाउ इफ यू टॉक अबाउट इंसर्शन ऑफ ब्लॉक, मींस आपने एक ब्लॉक बना दिया है, अब उस ब्लॉक को अगर आपको कॉल करना है तो हाउ यू गोना यूज इट। तो यहाँ पर आपको जो विंडो दिख रही है, अब इस विंडो के अंदर इंसर्ट लिखा हुआ है। अगर हम यहाँ पर देखें तो ब्लॉक डेफिनेशन लिखा हुआ है, मतलब हम ब्लॉक क्रिएट कर रहे हैं। एंड देन हम यहाँ पर स्विच करते हैं तो यहाँ पर इंसर्ट लिखा हुआ है, मतलब हम ब्लॉक को कॉल कर रहे हैं। तो यहाँ पर ब्लॉक को कॉल करने के लिए आपके पास में ब्राउज का ऑप्शन है और इवन यहाँ पर आपको नाम भी रिप्रेजेंट हो जाएगी। देन उसके बाद में आपको यहाँ पर इंसर्शन पॉइंट बताना है कि जो भी आप ब्लॉक को कॉल कर रहे हो उसको कहाँ पर प्लेस करना चाहते हो। देन स्केल, मतलब आप साइज क्या रखना चाहते हो। इवन वी कैन डिसाइड द रोटेशन वैल्यू। रोटेशन वैल्यू मींस आपका ब्लॉक जिस भी एंगल पे था, वी कैन कॉल इट 0 डिग्री एंगल। देन आपको जितना रोटेट करना है या फिर जिस भी एंगल पे रिप्रेजेंट करना है उसको, उस वैल्यू को भी आप यहाँ पर लिख सकते हैं, राइट। एंड हियर आर द स्क्रीनशॉट, or we can say I just shared a picture over there which shows the shortcut keys of AutoCAD. That are the simple shortcut keys जो आपको ऑब्वियसली बात है यूज आएंगे जब भी आप AutoCAD यूज करेंगे। तो जैसे शॉर्टकट की का यूज क्या होता है, शॉर्टकट की का यूज ये होता है लाइक इफ यू यूज माउस तो आपको प्रॉपर्ली माउस से लेकर वहां पे क्लिक करना पड़ेगा, देन यू विल मूव फर्दर। बट अगर आपको शॉर्टकट की आती है तो यू कैन यूज योर बोथ हैंड्स। एक हाथ से आप माउस कंट्रोल कर सकते हैं और एक हाथ से आप कीबोर्ड कर सकते हैं, जिससे आपकी स्पीड इंक्रीज हो जाएगी। एंड हियर आर द एग्जांपल ऑफ 2D ड्राइंग, जो कि हमने एक सर्कल कमांड यूज करी है। अब सर्कल कमांड कैसे यूज करते हैं तो वो चीज हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। सर्कल कमांड यूज करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा,
यहाँ पर ड्रॉ पैलेट के अंदर हमारे पास में सर्कल टूल है एंड देयर आर सेवरल टाइप ऑफ सर्कल्स विच वी कैन यूज टू ड्रॉ आवर ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पर जो ये एग्जांपल है, इस एग्जांपल को हमने ड्रॉ करा है सर्कल टूल बार से, राइट। एंड हियर इफ आई शोज यू बाय यूज ऑफ सर्कल कमांड and that shows TTT. TTT means tangent, tangent, tangent circle. What is TTT? TTT is basically representation of a one type of circle. तो हमारे पास में बेसिकली 6 टाइप ऑफ सर्कल्स होते हैं ऑटोकैड के अंदर, एंड वहां पर हम डिफरेंट डिफरेंट कमांड्स के थ्रू डिफरेंट डिफरेंट सर्कल्स को बना सकते हैं। There is another example by the use of array command. What is array? We have already discussed in the previous slides. Array use होता है मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स बनाने के लिए। लाइक अगर आपके पास में एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रखा है और आपको सिमिलर ऑब्जेक्ट को मल्टीपल टाइम्स क्रिएट करना है, लाइक काइंड ऑफ अ कॉपी, तो आप एरेज का यूज कर सकते हो। और एरे यहाँ पर आपके पास में 3 तरीके के होते हैं, रेक्टेंगुलर एरे, पोलर एरे एंड अ पाथ एरे। Let's move further. It's another example of hook drawn by Mix2D. Mix2D means आपने 2D के टूल्स को मिक्स करके यूज करा हुआ है, और इवन वी कैन से हमने थोड़ा सा उसको 3D टच भी दिया हुआ है। दैट्स व्हाई वी कैन कॉल इट 2D और मिक्स 2D। नाउ let's move further to the next topic. Our first topic is like till here 2D, and now we'll move to the next topic, that is isometry. What is isometry? The most common type of pictorial type drawing used in the drafting industry in the isometric drawing. This supplements focused on the tools and drawing aids that help you. Like इसको सिंपल फॉर्म में यूज करते हैं, तो ऐसी ड्राइंग्स जो अकॉर्डिंग टू यू 3D लग रही है बट है नहीं। अब वो कैसे रिप्रेजेंट हो सकता है? लेट्स से यहाँ पर एक ये ड्राइंग है, राइट। अब ये विजुअल में भी आपको 2D दिख रही है। लेट्स से आपने यहाँ पर एक्स एक्सिस यूज करी है एंड वाई एक्सिस यूज करी है, तो सिंपल सी बात है आपके पास में ये 2D डिजाइन है। बट अगर मैं इस डिजाइन को देखूँ तो इसका रिप्रेजेंट कुछ ऐसा आ रहा है जो विजुअली मुझे 3D लुक दे रहा है, तो दैट्स व्हाई वी कैन कॉल इट आइसोमेट्रिक। बट ऑब्वियसली बात है ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को यूज करके बना हुआ है, तो वी हैव ओनली यूज 2 एक्सिस, इसलिए ये आइसोमेट्रिक। Now, if we talk about more about isometric thing, advanced describe how to construct a 3D model. The term isometric means equal. Isometric means equal and measurement. So equal measurement means isometric. The isometric drawing has no perspective, and therefore edges that are equal in length are drawn equal in length. मतलब आपके पास में जो डायग्राम बना हुआ है वो एक वैल्यू जो दे रखी है आपको, वो एज इट इज आप उसको यूज कर सकते हो जिस भी रिप्रेजेंटेशन में वो बना हुआ है, जैसा यहाँ पर आपको दिख रहा है। तो जैसा मेरे पास में ड्राइंग के अंदर जो मेजरमेंट्स थी वही मेरे पास में यहाँ पर भी मेजरमेंट्स आएगी। बट अगर मैं इसको 2D और 3D विजुअल में बनाता हूँ तो ये केवल मुझे यहाँ पर फ्रंट व्यू में मुझे पूरी टोटल लेंथ दिख रही है, बट टॉप व्यू में मुझे ये लेंथ नहीं दिखेगी, राइट। एंड इफ यू टॉक अबाउट द इंट्रोडक्शन ऑफ आइसोमेट्रिक ड्राइंग, लेट्स गो फॉरवर्ड। सर्कुलर फीचर अपीयर्स इलिप्टिकल इन एन आइसोमेट्रिक ड्राइंग। अब हमने जैसे यहाँ पर बात करी है तो एक कुछ लिमिटेशंस भी हैं इसकी आइसोमेट्रिक की। वो क्या लिमिटेशंस है कि आप यहाँ पर सर्कल यूज नहीं कर सकते, रेक्टेंगल यूज नहीं कर सकते, पॉलीगन यूज नहीं कर सकते। सम आर द कमांड्स व्हिच कांट बी यूज्ड इन आइसोमेट्रिक ड्राइंग। लाइक अगर आप आइसोमेट्रिक ड्राइंग बना रहे हो तो कुछ लिमिटेशंस है जो टूल्स आप यूज नहीं कर सकते, जैसा कि एक लिमिटेशन है सर्कल यूज नहीं कर सकते। तो इंस्टेड ऑफ यूजिंग सर्कल वी कैन यूज एलिप्स टूल। और जब भी आप एलिप्स टूल यूज करते हैं तब उसके अंदर आपके पास में एक ऑप्शन आता है कॉल्ड आइसो सर्कल। अब आपको आइसोमेट्रिक डिजाइन बनानी है तो आप कैसे एंटर कर सकते हैं आइसोमेट्रिक सेक्शन के अंदर। टू गो टू द आइसोमेट्रिक मोड, टाइप स्नैप एंड राइट क्लिक, देन नेक्स्ट अगेन राइट क्लिक, then go to style and select isometric, then again right click and we are ready to work in isometric plane. That are the steps which we can use to draw in isometric section. So here is an example of isometric drawing. You can see that, and if you want to try it, here are the dimensions which we can also use it to design that drawing. That's an isometric drawing of a kitchen section. Like if you are a civil student, you can see that कि अगर आपके पास में एक किचन है तो वो 3D व्यू तो आपने बनाया नहीं है, तो एक आइसोमेट्रिक व्यू आप क्रिएट कर सकते हो जिससे एक विजुअल इफेक्ट ऐसा आता है कि ये 3D इफेक्ट देता है। बट ऑब्वियसली बात है ये आइसोमेट्रिक है तो आप इसको रोटेट करके नहीं देख सकते, या फिर आप इसको 3 डायमेंशन व्यू में नहीं देख सकते। दैट आर द लिमिटेशंस ऑफ आइसोमेट्रिक। नाउ अब हमने इतनी बात कर ली है तो लेट्स मूव टू द फर्स्ट and but not the least, we can talk about 3D. So 3D capable allows you to draw
pictorial views such as isometric, oblique views and perspective views. तो जो आपका 3D sections होता है वो तीनों व्यू बनाने के लिए रेडी होता है. जैसे आइसोमेट्रिक व्यू. सो व्हाट इज आइसोमेट्रिक व्यू? एक पर्टिकुलर एंगल पे आप अगर कुछ डायग्राम को दिखा रहे हैं जिसमें आपको फ्रंट व्यू, टॉप व्यू और साइड व्यू भी दिख रहा है, मोर देन वन व्यू कैन बी विजिबल, that we can call is isometric, and as well as we can call it perspective view. The view drawn with CAD have a number of advantages as compared to view drawn on drawing board. तो जब आप एक सिंपल बोर्ड पे अगर कोई डिजाइन बनाते हैं और उसको कंपेयर करते हैं आप किसी कैड सॉफ्टवेयर पे बनी हुई डिजाइन का, तो बहुत सारे वेरिएशंस आ सकते हैं जो कि हम ऑलरेडी अभी तक डिस्कस कर चुके हैं और वही चीज यहाँ पर भी डिसाइड हुई. द व्यूज ड्रॉन इन कैड आर वेरी एक्यूरेट, एज वी कैन सी दैट कि जो भी आपने डायग्राम बनाया है उसकी एक पर्टिकुलर मेजरमेंट से यहाँ पर, तो वी कैन वेरी बी श्योर और वेरी एक्यूरेट अबाउट दिस कि ये 50 यूनिट ही होगा. अगर यहाँ पर 50 लिखा है तो, अगर यहाँ पर 6 लिखा है तो वी आर श्योर अबाउट दैट इट्स 6. The major distinction between 2D drawing and 3D model is that 2D drawing is defined only with two coordinates. As I said in the like starting sections, that 2D means two dimensions and we have three dimensions x, y and z. So 2D means two dimension and we can either use x, y, y, z or zx. And if we talk about 3D, we have to use x, y, z at the same time. The z coordinates determines the height of an object. To make a 3D model, you need to consider all the objects of the model in 3D space and entire the x, y, z coordinates all drawing objects. तो आपको हर ड्राइंग के लिए x, y, z coordinates यूज करने पड़ेंगे अगर आप 3D डिजाइन बनाना चाहते हैं. If there is no option like no coordinate in z, so you have to use 0 instead of using any other value or just keeping it 0. And if we talk about 3D modeling, solid contains the mass property of 3D object. You can use the solid toolbar for readily access objects like box, cylinder and wedges. And how 3D will look like, I'll just let you know. In that window you can see that's it, that's a workspace which shows 3D tools. So here you can see modeling over there. There is no draw toolbar, no modify toolbar. Why? Because that's a 3D workspace. So 3D workspace contain modeling, meshing, solid edging, and some draw tools of creating 2D sections, and even we have modified tools as well so that we can modify the 2D tools. Right? Let's go ahead. And here we have boolean operations as well. What is boolean? Like you can join, subtract and intersect. So what does union means? Union means joining two solids. If you have one object and besides that here we have a two another object, and the both the objects are like sharing a particular section, so we can union them and the section which has common in both the objects will get separated. If we talk about subtract, so we can remove a part from the another object. And if we talk about the intersection, then the only section which is common in both of the objects will remain, and the other will get disappear. So here are some examples of 3D objects. And if you want to create some that objects, what you need to do, like if you want to create a box, you must start with a rectangle. So first create a rectangle like this and then give a certain height which shows by the point number 3. If you want to create a cylinder, then you must start with the point number 1, which is the center of the circle, and you need to define the radius value. If you know more tools, then you can either create with the diameter option, with the tangent option. So you have multiple options as well. If you know AutoCAD, how you can use AutoCAD, then you can use that skill to design some other kind of these objects. And here we have another tool example, that is cone, and for that we still need to require, with the help of point 1 we are defining the center point, and with the help of point number 2 we are defining the radius value, and by defining the third point we are describing the height. And here we have the example of sphere. So a sphere is a kind of an example we can see in the day-to-day life like a ball, right? So how we can draw it? We have a center point, and by the center point, if it touches a body outside the sphere, that is shown by the radius value. And here we can say it or indicate it with the help of two number, right? So you are just defining the first value, or we can say the first point, and defining the second point, and your sphere is ready.
And let's talk about some 3D commands. We'll start with the press pull section. So press pull can extend in the Z direction or be set to taper or fold apart. You can extrude an open or close object to create a 3D surface solid. So what is it? Like हमने यहाँ पर एक rectangle type का shape बनाया है, and what we need to do if we are using a press pull command, we just need to click on that particular sketch, that is click 1, and now need to define the second value, that is the height of the wall or height of the object. So that is how we can use press pull command. Now if we use extrude command, how we gonna use extrude command? If you extrude a surface into the third dimension, you simply add a thickness in the section. This basically is the same as creating a solid object. So let's see, you have an object like this. So that's a slightly difference between press pull and extrude, right? So in extrude, what we're gonna do, we're gonna extrude up to 5 units, and that's how it will look like after extruding it. And if we talk about that scenario, then we are extruding it up to 4 units, and that's how it look like after using extrude command. And there are some examples of 3D drawings which we can create after knowing several tools, or just brush up in your tools knowledge about 2D and 3D. Then you are capable of designing some kind of drawings. Let me show you some more designs. Here are some more examples. You can draw such kind of stairs, such kind of tools. If you are a student of mechanical, civil or electrical, you can design some kind of designs that are required in your professional life as well, right? So that's it from my side. Thank you everyone. And अगर आपको कुछ भी डिटेल्स चाहिए हो या फिर कोर्स के बारे में कुछ भी पूछना हो, तो यू कैन विजिट दैट वेबसाइट www.statpinfotech.com, एंड आप ज़्यादा डिटेल्स के लिए इस नंबर पे कॉल भी कर सकते हैं। एंड अगर आप मेरे बारे में और जानना चाहते हैं, तो यू कैन कॉल देम एंड आस्क मी अबाउट दैट। और आप चाहे तो सेटपा की इस वेबसाइट पर जाकर रिव्यूज भी चेक कर सकते हैं। So that's it from my side. Thank you everyone. My name is Yashwant Sharma. Have a good day.